Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So today we will discuss about non-metals. We were discussing about chapter number 3. We have already discussed about metals, their physical or chemical properties. So today we will discuss about non-metals. So a non-metal is an element which form anion by gain electrons, right? They generally form anions. Anion means they having negative charge on दैट बिकॉज दे आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है. ठीक है, तो जो जब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं नॉन मेटल्स, तो जो इनके ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है, तो जो ऑक्साइड्स होते हैं इनकी जनरली वो कैसे होते हैं, दो ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर. ओके, तो जो नॉन मेटल्स होती हैं दीज आर जनरली फाउंड इन 3 स्टेट्स, राइट. ऑल द 3 स्टेट्स दे आर जनरली फाउंड. So those are solid, liquid और गैस. ठीक है, तीनों के तीनों स्टेट्स में पाई जाती हैं. अगर हम एग्जांपल्स लें तो कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सिलिकॉन. सो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स. ओके, लेट्स डिस्कस सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. So the first property of non-metal is physical state, right. So non-metals can generally exist in 3 states which we have already discussed, that is solid, liquid or gases. So generally our non-metals are 22, and if we bifurcate the non-metals in all the categories, so in solids there are 11 non-metals, in liquid there is 1 non-metal, and in gases there is 10 non-metals, right. In solid category generally carbon, sulfur or phosphorus, silicon. So these are in the category of solid. In liquid, bromine is only non-metal which is found in liquid state, or gases oxygen, nitrogen, chlorine, fluorine, carbon dioxide. So these are in the form of gaseous state. So this is about the physical state of non-metals. I hope this is clear, right. So let us move to the next point, that is melting and boiling point. तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉन मेटल्स का, वो क्या होता है, जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनका क्या होता है, लो होता है. बट कुछ नॉन मेटल्स ऐसी होती हैं जैसे कि ग्रेफाइट है और डायमंड है, सिलिकॉन है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है. तो अगर यहाँ पे हम एक्सेप्शन की बात करें, जनरली दे हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, बट एक्सेप्शन इज हियर, दैट इज डायमंड. अगर डायमंड की बात करें, ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट और सिलिकॉन, राइट. डायमंड, ग्रेफाइट और सिलिकॉन आर द नॉन मेटल which having high melting or boiling points because these having 3D structure. जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, 3D मीन्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन malleable और यू कैन से नॉन डक्टाइल. यू कैन से नॉन डक्टाइल और so non-metals are generally non-malleable and non-ductile. Non-malleable means they cannot be drawn into thin sheets, or non-ductile means they are not drawn into thin wires, because these are the properties of metals. Metals are malleable or ductile in nature, but as we know they are non-malleable or non-ductile in nature, but they are brittle enough. They show the property of brittality. They show the property of brittality means it is the property of metals that it is the property of non-metals that they can be divided into thin pieces, right. They can be, or what you can say, can be broken into pieces when these are hammered, right. When these are hammered they can be broken into thin pieces. So as they can be broken into pieces after hammering, so they can be in the form of
पाउडर, राइट, पाउडर की फॉर्म में आ सकती हैं ये। तो जो सल्फर है, फॉस्फोरस है, आयोडीन है, सो दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, राइट। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन लस्ट्रस। मेटल्स में हमने पढ़ा था जो मेटल्स होती हैं वो लस्ट्रस होती हैं, बट जो नॉन मेटल्स होती हैं दीज आर जनरली नॉन लस्ट्रस इन नेचर, बट देर इज ऑल्सो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? जो आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन इज द एक्सेप्शन। आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस, राइट। सो जो आयोडीन है वो नॉन मेटल है, बट इट इज एक्सेप्शन बिकॉज इट इज लस्ट्रस इन नेचर, राइट। और दूसरा एग्जाम्पल है ग्रेफाइट का। जो ग्रेफाइट है वो भी क्या होता है? नॉन मेटल है, बट इट इज ऑल्सो लस्ट्रस। सो दीज आर द एक्सेप्शन, राइट। जो नॉन लस्ट्रस है, बाकी जो मेटल्स हैं वो क्या हो, बाकी जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होगी? नॉन लस्ट्रस, जैसे कि सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया। सो दीज आर नॉन लस्ट्रस नॉन मेटल्स, बट एक्सेप्शन आर आयोडीन और ग्रेफाइट, दीज आर लस्ट्रस। यू कैन से दीज आर लस्ट्रस। Okay, I hope this is clear. So the next property is thermal conductivity. Thermal means heat. You all of know that. Thermal means heat. ठीक है, तो जो हीट की कंडक्टिविटी होती है, मेटल्स जनरली कंडक्ट हीट, बट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट कंडक्ट हीट। ठीक है, जो नॉन मेटल्स होती हैं दीज आर, और व्हाट यू कैन से दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, राइट। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, सो नॉन मेटल्स आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं प्रोड्यूस करती हैं, राइट। बट कुछ नॉन मेटल्स ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो जो अगर हम बोरोन और सिलिकॉन की बात करें तो ये क्या हैं? दीज आर द known metals which are in the category of semiconductor, ठीक है, these are in the category of semiconductor, और there are also exception जिसका exception है, जो good conductor of heat होता है, that is graphite. It is good conductor of electricity, right? So graphite is the exception in non-metal. It produces electricity, so it is known as good conductor of electricity because it has free electrons. Because it has free electrons, ठीक है, इसके पास क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसीलिए यही रीज़न है कि जो ग्रेफाइट है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज द रीज़न दैट दिस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोड्स or graphite used to make graphite electrodes, right? So जो भी हम इलेक्ट्रोड्स अगर यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो जनरली किस चीज़ के बने होते हैं? वो जो उसकी इलेक्ट्रोड्स की रोड्स होती हैं वो जनरली ग्रेफाइट की बनी होती है, राइट। सो दिस इज़ वाई, बिकॉज दे हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आई होप दिस इज क्लियर। तो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो जनरली क्या होती हैं? दीज आर ओपन सॉफ्ट, जनरली सॉफ्ट होती हैं, बट देर इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन। जनरली सॉफ्ट होती हैं, बट जो डायमंड है वो क्या है? हार्डेस्ट नॉन मेटल है, ठीक है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल। और जो डायमंड है वो कहाँ कहाँ यूज होता है? इट इज यूज फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग। It is used for cutting and grindings. I hope this is clear. So the next property is sonority. Sonority means जो स्नोरस होती हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, मेटल्स जनरली साउंड प्रोड्यूस करती है व्हेन दे आर हिट, राइट। बट जो नॉन मेटल्स होती हैं दीज आर नॉन स्नोरस बिकॉज दे डू नॉट इमिट एनी साउंड व्हेन दे आर स्ट्रक विद एन ऑब्जेक्ट। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ नॉन मेटल्स को हम हिट करते हैं तो वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, राइट। सो दे व्हाट यू कैन से नॉन मेटल्स आर नॉन स्नोरस। आई होप दिस इज क्लियर।